Children, welcome once again to history session of civil. We had started yesterday civil disobedience movement. So once we shall be freshing ourselves with the yesterday's things. So we discussed about the demands put forth by Gandhiji to the British government, that is to cancel salt tax and to end monopoly of the government to manufacture salt, and then background of satyagraha. Gandhiji decided to launch civil disobedience movement as his demands were rejected by the British government. It was unjust to impose a salt tax as it's an important ingredient in the food of common man. And Peshawar Satyagraha was conducted by Khan Abdul Ghaffar Khan, known as Frontier Gandhi, and founder of Khudai Khidmatgar institution. Second was Solapur Satyagraha. We also discussed about Solapur Satyagraha. The mill workers in Solapur observed Hartal and organized a huge procession on 6th May 1930. One more is Dharasana Satyagraha. After the arrest of Gandhiji on 4th May 1930, Sarojini Naidu led the salt satyagraha at Dharasana in Gujarat. The satyagrahis silently tolerated the blows of lathi in batches endlessly. And one more was Dandi Yatra, also was organized by Gandhiji. Gandhiji selected a Dandi, a seashore in Gujarat, to begin salt satyagraha. On 12th March 1930, he set out from the Sabarmati ashram with his 78 followers. Gandhiji delivered speeches on his way to Dandi in the villages. He also appealed to the people to be fearless and to join the movement. After covering 385 km, Gandhiji reached Dandi on 5th April 1930. On 6th April 1930, Gandhiji broke the salt act by picking up the salt on the seashore. Till then, we had discussed till this. And today, we will be discussing about the features. Also, we discussed about the civil disobedience movement. Okay, how it was a nationwide movement it became. And people from rural areas also participated in this, registered their names, and women like Kasturba Gandhi, Kamla Devi Chattopadhyay, Avantika Gokhale, Lilavati Munshi, Hansaben Mehta all participated wholeheartedly. So this was a grand success because Britishers were afraid of civil disobedience movement. Now we will be discussing, we also discussed about the sacrifice of Babu Genu, that is unforgettable sacrifice of Babu Genu. This is also a part of civil disobedience movement because we were opposing foreign goods, and the truck carrying the foreign goods crushed Babu Genu because he was not allowing, he obstructed the vehicle by giving himself in front, by sleeping in front of the vehicle. He laid down on the road. So this was a very, very heart-moving incident. Now we will discuss about Round Table Conference. In the opinion of British Prime Minister Ramsay MacDonald, while the civil disobedience movement was going on, the constitutional issues regarding India should be thought over. Means they wanted to think of giving freedom to India. So they organized a Round Table Conference. This was all show off. They never wanted to free us, but see, Round Table Conference was organized in 1930 to 1932, but when they gave us freedom, 1947. So after that also 15 long years we have to suffer. Okay, we suffered actually. So it was not an easy job. MacDonald, while the civil disobedience movement was going on, the constitutional issues regarding India should be thought over. For this purpose, he organized a conference at London. Who organized? British Prime Minister Ramsay organized a conference at London. This conference is known as Round Table Conference. Please underline this. The conference organized by Prime Minister Ramsay MacDonald is known as Round Table Conference. In the period between 1930 to 1932, 3 Round Table Conferences were organized. The issue was to give a thought over the issues regarding India's constitution. So let's now discuss first Round Table Conference and see what they did for India in the first Round Table Conference. Ramsay MacDonald was the chairman of Round Table Conferences
Representatives of England and India participated in the conference. So Indians included Dr. Baba Saheb Ambedkar, Sir Tej Bahadur Sapru, Barrister Jinnah. In the conference, there were discussions on various topics such as responsible government at the central level, establishment of federal state in India, etc. Representatives of different political parties in India and rulers of princely states participated in the conference. Means along with Baba Saheb Ambedkar, Tej Bahadur Sapru and Barrister Jinnah, many rulers of princely state and different leaders of different political parties also participated in the first roundtable conference. However, the Indian National Congress did not participate in it. Indian National Congress did not participate because they were opposing to them. The Indian National Congress was a body that represented the country. Without its participation, the deliberation in the roundtable conference were indeed meaningless. Means without the participation of Congress was a ruling main party, only one party formed before the independence. So if it was not participating, the deliberations were meaningless. Second is, now we will be discussing, after first roundtable conference, we are discussing Gandhi-Irwin Pact. Let's see, Irwin Hospital is in Amravati till today, you know that? It was named after this viceroy. So shortly we have to make one moment to remove this Irwin name. Isn't it? Okay. You people don't make it, okay? Let's see. The British Prime Minister expressed his hope of participation of Indian National Congress in the second roundtable conferences. Means British Prime Minister Ramsay MacDonald, who had conducted the first roundtable conference, had a hope that Congress might participate in the second roundtable conference. In view of the appeal made by the Prime Minister, the Viceroy released Mahatma Gandhi and other leaders from the prison. Means appeal was made from the British Prime Minister from there. Britain से अपील किया गया, तभी इधर वाइसराय इरविन जो था उसने गांधी जी को जेल में से छोड़ा. Mahatma Gandhi and other leaders from prison. Thus, a conducive atmosphere was created for the Congress to discuss the issues freely. इसीलिए एक अच्छा माहौल बनाया गया जिसमें कांग्रेस खुल के कुछ बोल सकती थी. A pact was signed between Mahatma Gandhi and Viceroy Irwin, which is known as Gandhi-Irwin Pact. महात्मा गांधी और वाइसरॉय इरविन के बीच एक समझौता साइन किया गया, तो इस समझौते को गांधी इरविन पैक्ट नाम दिया गया. देखते हैं इस समझौते का क्या है. अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट assured that system of responsible government would be added in the proposed constitution of India. इस समझौते के अनुसार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक वादा किया. अश्योर्ड म्हणजे एक प्रॉमिस देना कि सिस्टम ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दे के जाएंगे. Consequently, Indian National Congress withdrew the civil disobedience movement and agreed to attend the roundtable conference. जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो चालू थी, इनके इतना अश्योरेंस देने के बाद उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट छोड़ दिया और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने को अग्री किया. तो देखते हैं दोस्तों, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आपको फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नहीं गई, तो क्या इन्होंने चाल चली कि इन्होंने एक गांधी इरविन पैक्ट करके एक पैक्ट साइन किया और उसमें गांधी जी और दूसरे लीडर्स को जेल में से छोड़ दिया और फिर ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया गया कि भाई हम एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आपको देंगे करके एक गांधी इरविन पैक्ट बनाया गया. तभी इंडियन लीडर्स ने सोचा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रद्द कर देते हैं और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं. समझ में आई बात? तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1931, द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड. महात्मा गांधी attended this conference as a representative of the Indian National Congress.
आईएनसी के रिप्रेजेंटेटिव बन के वो गए थे महात्मा गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। आपको याद करना है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों फेल हुआ, क्योंकि कांग्रेस ने उसको अटेंड नहीं किया, तो कुछ भी डेलिब्रेशन काम का नहीं आया। हालांकि उसमें अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर जैसे लीडर्स और बहुत सारे रेस्पॉन्सिबल लीडर्स गए थे, लेकिन कांग्रेस ने उसको अटेंड नहीं किया तो उसका कुछ महत्व नहीं रहा। इस वजह से फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज टोटली फेल्योर। एंड सेकेंड राउंड टेबल में गांधी जी ने सिर्फ अटेंड किया एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। Representatives of various caste, communities, political parties as well as princely states were invited. बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को इसमें इनवाइट किया गया था, जैसे कि वेरियस कास्ट के, कम्युनिटीज के, पॉलिटिकल लीडर्स, ये वो सबको बुलाया गया था। द गवर्नमेंट पुट फॉर द इश्यूज ऑफ माइनॉरिटीज इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब माइनॉरिटीज का इश्यू कुछ भी इश्यू नहीं बनता था अगर ये गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती थी, लेकिन इस गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी का इश्यू को बहुत बड़ा इश्यू बनाया। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, गांधी जी ट्राइड टू ब्रिंग अनएनिमिटी इन द ओपिनियन बट वॉज अनसक्सेसफुल। गांधी जी ने लेकिन ये जो गैप हो गई थी माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच में, ये भरना चाहा लेकिन वो भर नहीं सके। फाइनली गांधी जी बिकेम डिसअपॉइंटेड एंड रिटर्न बैक टू इंडिया। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटेन गए थे, फिर गांधी जी को कुछ भी सक्सेस नहीं मिला तो गांधी जी वापस भारत लौट आए। पूना पैक्ट। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रिप्रेजेंटेड द दलित्स इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये जो माइनॉरिटी का इश्यू था ना, इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलितों को रिप्रेजेंट किया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ही डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द दलित्स। दलित्स के लिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स खड़ा करना, म्हणजे फिर कंट्री ही ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएंगी, दलित अलग और बाकी लोग अलग। आफ्टर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडॉनल्ड डिक्लेयर्ड कम्युनल अवार्ड्स। अकॉर्डिंग टू इट, दलित्स वर गिवन सेपरेट इलेक्टोरेट्स। गांधी जी वेंट ऑन फास्ट अनटू डेथ एट एरवाड़ा जेल। गांधी जी ने इसका विरोध किया कि इनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना म्हणजे उनका सेपरेट लीडर, जैसे अभी कंट्री में से स्टेट बनने की जब मांग रखते हैं ना लोग, ऐसी मांग इन्होंने रखी थी, म्हणजे हमारा सब कुछ अलग होगा, दलितों का सब कुछ अलग होगा, ऐसी मांग रखी थी। लेकिन गांधी जी वेंट ऑन फास्ट, लेकिन उनको दे भी दिया गया, कम्युनल अवार्ड्स में उनको परमिशन भी दे दी गई सेपरेट इलेक्टोरेट की। लेकिन गांधी जी ने मरणोपरांत उपवास इरवाड़ा जेल में उन्होंने चले गए और उन्होंने मरने तक के उपवास धारण कर लिया। प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ग्रांटिंग ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। कास्ट के हिसाब से सेपरेट इलेक्टोरेट देना, इसके विरोध में गांधी जी ने भूख हड़ताल कर डाली, म्हणजे मरने तक उन्होंने उपवास रखने का ठान लिया। The leaders of Indian National Congress requested Dr. बाबा साहेब अम्बेडकर को reconsider the demand for separate electorates. सब लीडर्स ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को विनंती की कि इस पे दोबारा विचार किया जाए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो आप मांग रहे हो उस पर एक और बार विचार किया जाए। कीपिंग इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, डॉक्टर अम्बेडकर वॉज रेडी टू एक्सेप्ट दिस रिक्वेस्ट। देश हित में उन्होंने इस रिक्वेस्ट को, इस विचार को एक्सेप्ट करने की कोशिश की। इन 1932 महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर signed the famous Pune Pact. According to this pact, separate electorate for Dalits was cancelled and a provision for reserved seats were made. अब इन्होंने 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक पूना पैक्ट करके फेमस पैक्ट है, अंडरलाइन कीजिए प्लीज़ अंडरलाइन कीजिए। 1932 महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साइंड द फेमस पूना पैक्ट। According to this pact, separate electorates for Dalits was cancelled and a provision for reserved seats were made. इस पूना पैक्ट के तहत, क्योंकि गांधी जी उपवास के लिए बैठ गए, तो इस पूना पैक्ट के तहत क्या किया गया, दलितों के लिए
सेपरेट इलेक्टोरेट्स का इशू छोड़ के उन्होंने रिजर्वेशन का प्रोविज़न ला लिया, जो आज तक अपन भुगत रहे, जिसका परिणाम उन्होंने सब बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन की मांग करी। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये सब हुआ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। उनके रिजर्वेशन की वार आ गई थी, किसके बदले में? सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बदले में उन्होंने बोला कि ठीक है, हम इसको कंसिडर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको रिजर्वेशन चाहिए। रिजर्वेशन का मतलब ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं, हर जगह पे इनकी इतनी सीट रिजर्व। तो नाउ दे अटेंडेड द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। In the November 1932, the third round table conference was organized in England. The Indian National Congress boycotted the conference, thus this conference proved to be futile. लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस कॉन्फ्रेंस में न जाने का निश्चय कर लिया। मीन्स दे बायकॉटेड म्हणजे नहीं जाना है, तो इसकी वजह से ये फ्यूटाइल म्हणजे ये फेल गया। सेकेंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। Gandhiji returned to India from rural second round table conference with a dejected mind. गांधी जी ने इंग्लैंड से आए तब से इनका दिमाग थोड़ा सा दुखी थे गांधी जी। He decided to restart the civil disobedience movement. गांधी जी was immediately arrested. गांधी जी ने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने की सोचा, क्योंकि सेकेंड राउंड टेबल के पहले उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था, विड्रॉ कर लिया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से। लेकिन अभी वापस इन्होंने सेकेंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में यही सोचा कि फिर से हम सत्याग्रह करेंगे आज़ादी मिलने तक। गांधी जी, ये सुनते ही गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी वॉज अरेस्टेड इमीडिएटली। हैंस देर वॉज अ डिसकंटेंट एमॉन्ग द पीपल। इसीलिए लोगों में निराशा छा गई, क्योंकि लीडर जो है वही नहीं रहा तो फिर सब काम मुश्किल हो जाता है। गवर्नमेंट रेस्पॉन्डेड टू द मूवमेंट बाय यूजिंग इनह्यूमन ऑपरेसिव मेथड्स। गवर्नमेंट ने कैसा रेस्पॉन्स दिया मूवमेंट के लिए? यूजिंग इनह्यूमन ऑपरेसिव मेथड्स, म्हणजे वही उनका फायरिंग, मारना, जेल में डालना, वही तो आता था उनको, बाकी कुछ तो आता ही नहीं था। देर वॉज स्ट्रैंगलिंग ऑफ सिविक राइट्स एवरीवेयर। नागरिकत्व के हक इन्होंने कहीं पे भी नहीं छोड़े थे, सब जगह पे इन्होंने अपना जमा लिया था। रेस्ट्रिक्शंस वर मेड। हाँ, द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इट्स एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशन वर डिक्लेयर्ड इलीगल। इंडियन नेशनल कांग्रेस और कई ऐसे इंस्टीट्यूशन थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, उनको इलीगल म्हणजे गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया कि वो उनका अस्तित्व कुछ भी नहीं रहा है और ये गैर कानूनी है करके गांधी जी के साथ बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया। रेस्ट्रिक्शंस वर लेविड ऑन नेशनल न्यूज़पेपर एंड लिटरेचर। जो भी आप कविताएं लिखते थे, जो भी ग्रंथ लिखते थे, न्यूज़पेपर, सब पे बैन आ गया। सब पे इन्होंने बैन ला लिया, रेस्ट्रिक्शन ला लिया। फाइनली इन अप्रैल 1934 गांधी जी विड्रॉ द मूवमेंट एंड द हिस्टोरिकल फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट केम टू एन एंड। इसके बाद गांधी जी ने क्या किया? फाइनली इन अप्रैल 1934 गांधी जी विड्रू द मूवमेंट। गांधी जी ने उस मूवमेंट को वापस ले लिया एंड हिस्टोरिक फेस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट केम टू एन एंड। इस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का अंत हुआ। कैसे अंत हुआ? सेकेंड फेज में जब इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को छोड़ दिया था, सेकेंड फेज में नया चालू करना शुरू किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फिर से चालू करना शुरू किया। तो आपको पता है क्या हुआ? गांधी जी वगैरह को जेल में डाल दिया और आईएनसी जैसे इंस्टीट्यूशन को इलीगल डिक्लेयर कर दिया और न्यूज़पेपर में भी कुछ रेस्ट्रिक्शन आ गए हैं कि कौन छापेगा, कौन क्या कहेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ख़त्म हो गई। अपन थोड़े ऑब्जेक्टिव्स कर लेते हैं।
जैसे कि डैश ऑर्गेनाइज द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन, तो किसने ऑर्गेनाइज किया? रामसे मैकडोनल्ड. खान अब्दुल गफ्फार खान एस्टेब्लिश द ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड खुदाए खिदमतगार. डैश लेड धारासना सत्याग्रह, सरोजिनी नायडू लेड धारासना सत्याग्रह. The Round Table Conference dash participated as a representative of the Indian National Congress. To Mahatma Gandhi. Okay. Explain the following statement with reason. We will discuss in the next video. Till then, have a good day. Stay safe, stay at home and study.